recording. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. So we were working on continuous tenses, and I've already explained what are continuous tenses and how to identify continuous tenses. Continuous tenses are used for those situations when we want to say that an action is taking place right now. Okay, when something is happening now, we say it in continuous tense. Okay, when something is happening now, it will be present. When something is happening in the past at a particular time, we will use past continuous. And when something will be happening in future, we use future continuous. But there should be continuity, there should be uh, uh, the the ongoing work, है ना? The work should not stop at once, it should keep happening. That मैंने लिखा is the action that happened only once. मैं लिख रहा हूँ that the action is now in continuation. So these are the continuous tense we are working on, and we worked on affirmative in the previous class, and all the details I've already taught you. Okay, how to identify the continuous tense in Hindi, how to identify in present, how to identify in past and future. Today we are going to work on negative and interrogative. We have worked on already on affirmative. So two structures are remaining, negative and interrogative, from all the structures, all the tenses. So we already saw in our previous class that there are three helping verbs in present continuous. One is, the second is are, and the third is am. ठीक है? So is uses singular, are takes plural, and am take I. है ना? So there are different demands of all these three helping verbs. So we need three different structures. Okay, so that's why you see three different structure. One is with singular subject, that is using is. The other is with I as subject, that is using am, and the third is plural subject, that is using are. Okay, now we are going to work on negative. The structure of negative is very there is very little difference between affirmative and negative, है ना? So we see that in affirmative structure there is singular subject is and verb one, and in negative we see singular subject is, then not, then verb one. Okay, तो is और verb one के बीच में हमको ये not दिख रहा है यहाँ पे. ठीक है, तो ये चीज आपको हमेशा फॉलो करनी है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आपका नॉट आना चाहिए, है ना? और फौरन बाद आ जाना चाहिए. जैसे एम है यहाँ पर, तो एम के फौरन बाद आपको यहाँ नेगेटिव सेंटेंस में नॉट दिखेगा. यहाँ आर है तो आर में फौरन आर के बाद, यहाँ वॉज है तो वॉज के बाद, यहाँ वर है तो वर के बाद. ठीक, शैल है तो शैल के बाद, विल है तो विल के बाद. इफ इन केस यू हैव टू हेल्पिंग वर्ब, जैसे विल भी हो आपके पास और हैव भी हो, है ना? तो आप विल के बाद जो पहला वाला हेल्पिंग वर्ब है उसी के बाद ही नॉट लगाएंगे. ठीक, तो दिस इज कॉमन थिंग दैट यू शुड नो. नाउ लेट्स स्टार्ट मेकिंग सेंटेंसेस, एंड इट विल बी योर जॉब टू मेक, and I will tell you if it is right or wrong. So we have negative and interrogative structures remaining. Now how to participate? You will have to raise hand and you will have to give me a sentence that should be negative. Who will give the response first?
Raise your hand if you want to respond. You have to make a negative sentence of present continuous singular subject. Yes, Ruqayya. She is not paying attention in the class. She is not. Very good. She is not. Pay ing के साथ आएगा. Paying attention in the class. Pay attention होता है ध्यान देने के लिए. Good sentence. Now that was with singular subject. Now we are going to use subject I, and am takes only I, so we don't have other subject options. That is why I have given it in the bracket. So you have to use subject I, then am, then not, then any verb you want to use, and with ing. So who would like to make this sentence except Ruqayya? Anyone can raise hand. Or you can convert this sentence into negative if you want. It's okay. Yes, Hanifa. Be a little louder, my dear. I am not coming with you at your home. I can't hear your voice properly. It is coming, but it's not audible. Can you repeat what you said? Hanifa? Your voice was so low that I could not understand the answer. Hanifa Moriwala, can you please unmute yourself and say the answer again? Okay, chaliye. Hanifa has given the answer in written. I'm not coming with you at your home. Not at, but to. Uh, okay. And I will be capital. I will always be capital. Okay. Good. Thank you, Mantasha. Thank you, Hanifa. Mantasha ने भी आंसर दिया है. Both the answers were correct. So this is the sentence with where we use am, and now the third and last sentence of present continuous in negative, that is with plural subject. You have to use plural subject. Sorry here, and the helping verb are, then not, then verb with ing. Any plural subject, any verb you can use. Who would like to respond? दो स्टूडेंट्स का हो चुका है, रुकैया और हनीफा.
If you think that it will be difficult for you to make the sentence, you can just convert these sentences in negative. It's okay. I will accept that as well. But basically, it is your task. Okay. It will be of no good if I start writing sentence and then you just keep watching. Faiz, do you want to make sentence? Do not unmute yourself if you do not. Who would like to make? Except Hanifa and Ruqayya. I won't accept in chat unless there is some problem with the mic. Like Alia can write in chat, or like Hanifa had some problem. And those who want to give the response should turn on their mic, unmute themselves, and respond. It will give two things. One is confidence and the other is the right answer. Okay, Mantasha has raised hand. Yes, Mantasha? We are not laughing. We are not laughing. Okay, we are not laughing. Okay, very good. Now I see that we have used only pronoun. Pronoun are the words that are used in place of noun. That is जैसे उबैद उबैद के लिए हम यूज कर सकते हैं ही, है ना? जैसे मंतशा, इनके लिए हम यूज कर सकते हैं शी. ओके, एंड देयर आर उबैद एंड मंतशा, दीज आर प्रॉपर नाउन्स, है ना? वी कैन यूज कॉमन नाउन एज वेल. जैसे उबैद इज a teacher and teacher is a common noun. ठीक है? Mantasha is a student, or you can say she is a girl. ठीक है? तो Mantasha is a proper noun, student and girl is common noun, are common nouns. जैसे उबैद है तो टीचर कॉमन नाउन हुआ, उबैद प्रॉपर नाउन हुआ, है ना? कॉमन नाउन वो नाउन होते हैं जो कि हम एक ही नाम रखते हैं एक बहुत सारी चीजों का, है ना? मतलब हम वो नाम लें तो बहुत सारी चीजें उससे उसके उसमें आ जाएंगे, स्कोप में आ जाएंगे. पर हम जब उबैद कहेंगे तो फिर उबैद ही एड्रेस कर रहे होंगे, हम उबैद को ही, उससे ही बात कर रहे होंगे, है ना? तो ये प्रॉपर है बहुत. कभी कभी हम प्रॉपर बनाते हैं चीजों को, है ना? बनाने के लिए हम द का यूज करते हैं, है ना? द टीचर. तो वो जो कॉमन नाउन था उसको इस तरह से हम द लगा के प्रॉपर बनाते हैं. एनीवे, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे शी यूज हुआ है. आप शी की जगह कोई सिंगुलर प्रॉपर नाउन या कॉमन नाउन यूज कर सकते हैं. जैसे कि आप लिख सकते हैं कि उबैद, है ना? या फिर वन स्टूडेंट. आप सिर्फ स्टूडेंट भी कर सकते हैं, वन स्टूडेंट भी कर सकते हैं, है ना? तो पर इसके अंदर आपको सिंगुलर ही रखना है. ठीक है, ये प्लूरल नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट्स नहीं होना चाहिए, है ना? ऐसे नहीं होना चाहिए. आप आई को रिप्लेस नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि इसको एम ही चाहिए, है ना? तो यहाँ पर तो आपको आई ही रखना पड़ेगा. एम जो है वो आई के अलावा किसी के साथ यूज नहीं हो सकता है. यहाँ पे वी जो है, यहाँ पर आप
प्लूरल जो नाउन है वो रख सकते हैं। जो प्रॉपर नाउन है उसमें प्लूरल नाउन बहुत ही कम ओकेजन्स पे बनाया जाता है। प्रॉपर को प्लूरल बहुत कम ओकेजन्स पे बनाया जाता है, पर हम जो कॉमन नाउन है उनको यूज कर सकते हैं, जैसे बॉयज या फिर गर्ल्स, है ना, या स्टूडेंट्स, है ना, इस तरह के कोई भी कॉमन नाउन हम उसकी प्लूरल फॉर्म यूज कर सकते हैं। अब आते हैं हम पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस में आपको दो सब हेल्पिंग वर्ब मिलते हैं, एक मिलता है was और एक मिलता है were। ठीक है, was सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है और were प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। तो नाउ हियर वी गो, हियर इज द नेगेटिव स्ट्रक्चर। यू हैव टू यूज सिंगुलर सब्जेक्ट एंड was, then not, then verb ing के साथ। okay, now who would like to make? When the class is started, we have about 8 students. Now when I started asking, there are only 4 students. Some students think that Ubay sir is don't think that I'm going to give you any harm by asking questions. When I ask questions, I do it for your betterment. There's no need to leave the class. Okay, who would like to make the sentence? Anyone can make. Those who responded can make sentence as well. To make singular. Yes, yes, singular subject। आप अगर was को यूज करना चाहते हैं तो उसके साथ आपको सिंगुलर सब्जेक्ट ही रखना होगा। You have to use this structure. Is it difficult? Or you are making a difficult sentence? Yes, Ruqayya? Priya was jogging yesterday morning. Okay, Priya was jogging. Okay. There is one comment as well. हनीफा ने बेटा ये हम पास्ट पर भी काम कर रहे हैं ना, तो हमको was यूज करना है। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमको was यूज करना है। अभी वो हम प्रेजेंट यूज कर रहे थे तो वहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करना था हमको, और यहाँ पर हमको पास्ट के साथ was यूज करना है, was not। ठीक है, तो प्रिया was जॉगिंग एक सेंटेंस बना। अब हमको प्लूरल सब्जेक्ट यूज करना है। ठीक है, और उसके साथ वर यूज होगा। ठीक है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के एग्जांपल्स में हम यहाँ से देख सकते हैं, यही यूज नहीं करना है, इसके अलावा कोई और यूज कर सकते हैं हम। बाकी जो हमारे प्रोनाउंस हैं उसके अंदर यू, वी एंड दे, ये 3 हैं जो प्रोनाउन में प्लूरल होते हैं। ठीक है, हम ये भी यूज कर सकते हैं अगर चाहते हैं तो। कौन बनाएगा? कमेंट में एक्सेप्टेबल नहीं है आंसर।
सर मैंने नेगेटिव की जगह पॉजिटिव बना दिया सेंटेंस। ओके ओके, यस, मैं भी भूल गया उसको। हाँ, अब हो गया, ठीक है। They were not coming. यस मंतशा। They were not playing football properly. Okay, they were not playing football. They were not playing football. We have another response from Hanifa, Foot- and Hanifa said that Not playing football. it's okay. Properly तो वो हम जो playing में add और कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम उसको नहीं भी लगाते तो भी सेंटेंस हमारा पूरा हो जाएगा, ठीक है। एंड दे वर नॉट कमिंग, ये सेंटेंस बनाया था हनीफा ने। It was also a right answer. Thank you both of you. Now we move on to future continuous, और इसमें मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब जो है और आईएनजी जो है इसके बीच में हम बी ऐड कर रहे थे। वो बी जो है नेगेटिव स्ट्रक्चर में बाकी रहेगा। शैल और बी के बीच में या विल और बी के बीच में हम नॉट लगाएंगे, ठीक है। तो हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो सिंगुलर और प्लूरल के बेस पर डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट, ऐसे डिवाइड कर रहे थे। पर अभी हम जो डिवाइड करेंगे वो करेंगे आई और वी के साथ हम क्या यूज करेंगे, और आई वी के अलावा जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हम क्या यूज करेंगे, ये ऑलरेडी आप देख चुके हैं पहले ही। तो फ्यूचर में जो डिवीजन है वो सिंगुलर प्लूरल का नहीं है। सिंगुलर फ्यूचर में जो डिवीजन है वो आई वी और आई वी के अलावा जो सब्जेक्ट्स हैं वो चाहे जितने भी हैं सब अपने साथ विल यूज करेंगे और आई वी अपने साथ शैल यूज करेंगे। तो चलिए कौन बनाएगा सेंटेंस इस स्ट्रक्चर को यूज करके। यस रुकैया। We shall not be going at this time. Okay, we shall not be at this time. Okay, good. Now next is we have to use other subjects other than I and V. I और V के अलावा जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें से हमको कोई एक स्ट्रक्चर, I और V के अलावा जो सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत सारे हैं, है ना। I V तो समझिए कि बहुत ही कम हुए, जैसे पूरे रेगिस्तान में रेत का एक कण उतने I V हुए। बाकी उसके अलावा सारे सब्जेक्ट्स की भरमार है। एक रिस्पॉन्स आया है, वेरी गुड, हनीफा ने एक आंसर दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि कोई और मुझे बोल के भी बताए, कोई आंसर दे। हनीफा ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन सेंटेंस बनाया है। कोई और स्टूडेंट्स, आफरीन भी आई हैं अभी, मंतशा हैं, रुकैया हैं, इनमें से भी कोई। रुकैया ने तो चलिए बना दिया अभी। हनीफा का सेंटेंस लिख देता हूं मैं। पेपर विल नॉट बी accepted after the bell rings. उन्होंने ये मिस्टेक की थी कि उसमें एस ऐड नहीं किया था आखिर में, ये बेल रिंग्स यूज होगा यहाँ पे, कि बेल बजती है उसके बाद पेपर जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। पर
इस सेंटेंस में एक गलती है, जिसकी वजह से ये फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं कहलाएगा। Accepted. यस, इट इज एक्सेप्टेड। ओके, तो इन्होंने अच्छी कोशिश की थी, लेकिन इसके अंदर आईएनजी नहीं है ना। अगर हम इसको आईएनजी ऐड कर देते हैं, है ना, तो सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं बनेगा। पेपर विल नॉट बी एक्सेप्टिंग आफ्टर द बेल रिंग्स, इसका कोई मीनिंग नहीं बनेगा। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि Sir, ये एक्टिव सेंटेंस नहीं है, ये पैसिव सेंटेंस है। इसके अंदर असल में जो हम सेंटेंस बनाते हैं ना, जिसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, हमने इसको उल्टा कर दिया है। जैसे नो वन विल accept the paper after the bell rings। ये है एक्टिव सेंटेंस। इस सेंटेंस का पैसिव फॉर्म जो है वो हमको हनीफा ने बना के दिखाया। ठीक है ना। अगर हम उस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कहते हैं तो हम क्या करते हैं, हम जो ऑब्जेक्ट है उसको उठा के शुरू में कर देते हैं। ठीक है। और जो सब्जेक्ट है अगर वो ऐसा है जिसको पढ़ के समझ में आ रहा है कि ये काम कौन कर रहा है, तो फिर मेंशन किया जाएगा, वरना फिर नहीं किया जाएगा, है ना। तो यहाँ पे समझ में ही नहीं आ रहा है कि कौन करेगा, है ना। तो फिर क्या हो जाएगा, पेपर विल नॉट बी एक्सेप्टेड आफ्टर द बेल रिंग्स, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये रॉन्ग स्ट्रक्चर हो गया जिसके हिसाब से हमको चाहिए। कौन बनाएगा? राइट, हनीफा, यू कैन ट्राई अगेन, यू कैन गिव मी अनदर सेंटेंस। सर इस सेंटेंस को हम ऐसे लिख सकते हैं, टीचर विल नॉट बी एक्सेप्टिंग द पेपर आफ्टर द बेल रिंग्स। वेरी गुड। हम उसके असल में सब्जेक्ट नहीं था, उसके अंदर काम करने वाला नहीं था, पेपर से शुरू हो रहा था वो, है ना। तो अगर हम कहें टीचर विल नॉट बी एक्सेप्टिंग द पेपर आफ्टर द बेल रिंग्स, तो फिर ये राइट आंसर होगा हमारा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे काम करने वाला है सब्जेक्ट, जो कि पेपर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ना। काम क्या हो रहा है, पेपर को एक्सेप्ट करना, है ना। कौन कर रहा है? टीचर। तो यहाँ पे नॉट है, तो करना या नहीं करना दोनों ही काम है ना। तो ये सब्जेक्ट का होना जरूरी है, उसके अंदर काम करने वाला क्लियरली शो होना चाहिए। फिर मंतशा ने एक बनाया है, होमवर्क विल नॉट बी एक्सेप्टिंग विदाउट क्वेश्चंस। ये रॉन्ग है, होमवर्क विल नॉट बी एक्सेप्टेड सेंटेंस होगा। फिर अगेन इसके अंदर जो है वो एक्सेप्ट करने वाला कौन है वो पता नहीं चल रहा है ना। जो कि आपके होमवर्क को जो एक्सेप्ट करेगा वो कौन है ना। तो ये फिर पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर है ना। पैसिव वॉइस में क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। आपने आईएनजी लगा दिया है सही करने के लिए, लेकिन आईएनजी नहीं आएगा। होमवर्क विल नॉट बी एक्सेप्टेड विदाउट क्वेश्चंस, पर कौन एक्सेप्ट नहीं करेगा? तो आप इसको कह सकते हैं टीचर विल नॉट बी एक्सेप्टिंग द होमवर्क विदाउट क्वेश्चंस। आपके आंसर्स में क्वेश्चंस लिखे होने चाहिए, तभी उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। तो अच्छा लगा, लास्ट के जो 2 क्वेश्चंस थे उसके अंदर इंटरेक्शन ज़्यादा अच्छा हुआ। ठीक है, तो लेकिन ये हमारी आज की लास्ट क्लास थी। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए टाइम नहीं बचा है हमारे पास, और अगर मुझे कभी प्रॉक्सीज वगैरह मिलती हैं यहाँ पे क्लास में तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा इंशाल्लाह। कुछ रिवीजन भी करूँगा, दूसरे स्टूडेंट्स क्लास में जो नहीं आते हैं उनके लिए भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, इस ग्रामर क्लास में बस इतना ही।
Thank you very much everyone for joining and participating. Thank you, Mantasha. I would name Afreen, Hanifa, Ruqayya and Alia for joining the class and staying here till the end. Thank you very much everyone. See you in the class on 18 on Thursday inshallah. Okay. अगर आपने अभी तक अपने पेरेंट्स को भेजकर यहाँ पे सहमति पत्र पे साइन नहीं करवाए हैं तो उनको भेज दीजिए। सहमति पत्र स्कूल में ही है, उसको सम्मति पत्र कहते हैं गुजराती में, वो स्कूल में ही है। उसके ऊपर आकर वो साइन कर देंगे और आपकी एंट्री जो है वो हो जाएगी क्लास में। अगर वो साइन नहीं होता है तो फिर आपकी एंट्री मुश्किल है। ओके, तो आप अपने पेरेंट्स को जरूर भेजिएगा उसके लिए। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? सर हमारे स्कूल दोपहर की हुई। आपके स्कूल का जो टाइम है वो पूरा आपको इंशाल्लाह आज शाम तक या फिर कल सुबह तक मिल जाएगा टाइम टेबल। और टाइम टेबल में देख लीजिएगा पीरियड्स की टाइमिंग क्या है। आपकी स्कूल जो है स्टैंडर्ड 8 की तो फिर सुबह से शुरू होगी 9 बजे से और 5 बजे तक रहेगी। ओके, चलिए तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द क्लास। अस्सलाम वालेकुम, यू कैन लीव विद सलाम।